everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Sex Determination. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board 2020. So the question is, A part, compare the mechanism of sex determination in humans with that of honeybees with respect to chromosome number. And B part, how is the gamete formation comparable in the above two cases. तो बेटा इस क्वेश्चन के A पार्ट में हमसे पूछा है कि ह्यूमंस का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म और हनीबीज का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर, और B पार्ट में हमें दोनों केसेस में गैमीट फॉर्मेशन को कंपेयर करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट ह्यूमंस और हनीबीज के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को कंपेयर कर लेते हैं. तो बेटा जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होता है वो होता है एक्स वाई टाइप का, यानी कि वो मेल हेट्रोगेमिटी शो करते हैं, यानी कि ह्यूमन मेल्स के पास 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, इसीलिए वो 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनाएंगे और जो प्रोजेनी बनेगी उसका जो सेक्स होगा वो डिपेंड करेगा मेल पेरेंट पे. क्लियर. ह्यूमंस में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है. तो फीमेल्स के पास 2 सिमिलर टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज एक्स एंड एक्स, और जो मेल्स होते हैं, मेल्स के पास 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई. तो जो फीमेल गैमीट एक्स मेल गैमीट से फर्टिलाइज करेगा वो बनाएगा फीमेल, और जो फीमेल गैमीट वाई मेल गैमीट से फर्टिलाइज करेगा वो बनाएगा मेल. क्लियर. जबकि बेटा जो हनी भी होती है उसमें हेप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी उनमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं विद 32 क्रोमोसोम्स और जो मेल्स होते हैं वो हेप्लॉयड होते हैं विद 16 क्रोमोसोम्स. तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी जो डिप्लॉयड एग होता है वो डेवलप करता है फीमेल में, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है दैट इज हेप्लॉयड एग होता है वो पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप हो जाता है मेल में, दैट इज ड्रोन में. क्लियर. तो ये तो है कंपैरिजन बिटवीन द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमंस एंड हनीबीज. सो ए पार्ट, द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमंस इज XY टाइप. आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, 22 पेयर्स आर exactly same in both males and females. These are the autosomes. A pair of X chromosomes are present in the female, whereas the presence of an X and Y chromosome are determinant of the male characteristics. During spermatogenesis among males, 2 types of gametes are produced. 50% of the total sperm produced carry the X chromosome and the rest 50% has Y chromosome beside the autosomes. Females, however, produce only one type of ovum with an X chromosome. There is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X or Y chromosome. In case the ovum fertilizes with the sperm carrying X chromosome, the zygote develops into a female, that is XX, and the fertilization of ovum with Y chromosome carrying sperm results into a male offspring. Clear beta? Then honeybees, the sex determination in honeybee is based on the number of sets of chromosomes an individual receives. An offspring formed from the union of a sperm and an egg develops as a female, queen or worker, and an unfertilized egg develops as a male, that is drone by means of parthenogenesis. This means that the males have half the number of chromosomes than that of a female. The females are diploid having 32 chromosomes and males are haploid having 16 chromosomes. This is called as haplodiploid sex determination system and has special characteristic features such as the males produce sperms by mitosis, they do not have father and thus cannot have sons but have a grandfather and can have grandsons. Clear beta? देन बी पार्ट में हमें ह्यूमंस और हनीबीज में गैमीट फॉर्मेशन को कंपेयर करना था. तो सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन इन ह्यूमंस, तो बेटा मेल के पास ऑटोसोम्स होंगे विद XY सेक्स क्रोमोसोम्स और फीमेल्स के पास ऑटोसोम्स होंगे विद XX सेक्स क्रोमोसोम्स. मेल और फीमेल ह्यूमंस में दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं, तो गैमीट्स तो हेप्लॉयड होते हैं, तो डिप्लॉयड पेरेंट से गैमीट्स हेप्लॉयड बनाने के लिए मियोसिस सेल डिवीजन होगा मेल में भी और फीमेल में भी. जो मेल के गैमीट्स बनेंगे वो 2 टाइप्स के बनेंगे, ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स प्लस Y क्रोमोसोम, और फीमेल में 2 सिमिलर टाइप के गैमीट्स बनेंगे, ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम. क्लियर. अब गैमीट फॉर्मेशन इन हनीबी में मेल्स हेप्लॉयड होते हैं विद 16 क्रोमोसोम्स, तो हेप्लॉयड गैमीट्स बनाने के लिए उन्हें माइटोसिस करना पड़ेगा और उनके गैमीट्स के पास 16 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे. और जो फीमेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं विद 32 क्रोमोसोम्स, तो उन्हें हेप्लॉयड गैमीट बनाने के लिए मियोसिस करना पड़ेगा, तो गैमीट के पास 16 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे. क्लियर. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.